First, we need to understand what is confirmation control. Here you see this one, do F1 on this field. F1 उस पे अगर करते हैं आप, system will show you what is confirmation control key. It determines which confirmation categories are expected for PO. For example, order acknowledgement, shipment notification. So basically, he see enter the key containing confirmation category agreed with the vendor. तो यहाँ पे कंफर्मेशन कंट्रोल की आपको वही एंटर करनी है जो वेंडर से अग्री हुई है, जो वेंडर ने आपको अग्री किया है. So confirmation control key is nothing but here if you see confirmation control key, there are different types of confirmation control key. Confirmation control key first of all it's it's just an acknowledgement from vendor that he has received the purchase order, and this acknowledgement involves not only receiving of PO but also when he is going to deliver the material. Okay, so this complete process is nothing but confirmation control. This confirmation control is, it will include acceptance of PO, that vendor has received the PO. Then it also includes when vendor is going to send the material. 1 second. Hey, sorry guys, some urgent call was there. Okay, so you guys understand the overall concept of confirmation control key. Confirmation control key is nothing but vendor will, it's just an acknowledgement from vendor that vendor has received the PO, he has received the purchase orders, and it also includes when he is going to deliver the material. Okay, so usually here we will use 002, we can use RA, we can use also ENLI, inbound delivery ECC, but see, there are some conditions with each confirmation control key. Okay, at this point just know that you have to use RA. RA is one of them. At this point just use RA only. Okay. Later on we will see inbound delivery with ECC or APO. These are nothing but advanced planning and optimization. So this requires some advanced SAP package. You see, if you go to system and click on status, here you will see additional package which are there with SAP system. So here if you go, here you see this is support package level. These are the installed softwares. These are the installed softwares. SAP is one, but these are, you can say, bodies, business add-ins kind of things. So few of the confirmation control key requires some additional package like WMS, APO. Okay, so at this moment just use RA.
So that is one thing. Now, any other questions anybody have? Sir, Incoterms. Incoterms, yes. 11 लोग कैसे हैं? Sorry, my throat is having some. Okay. ठीक है अनिल, it's okay. Enjoying from both mobile and laptop. I thought somebody else has come. Okay, no worries. So Incoterms. Terms are nothing but it's, you can say, a condition for logistic. जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है, उससे रिलेटेड कंडीशन है इनकोटर्म्स. Incoterms, you can see this kind of Incoterms. I will explain few of them. First one is CFR, cost and freight. In this case, what happens? Vendor will take care of material manufacturing and he will also take care of freight. Okay, he will take care of freight and material manufacturing, but he will take this money from us. He will manage cost and freight. He will do the management, but he will take money from us only. That is CFR. Second is cost, insurance and freight. In this case, he will manufacture material, he will do the insurance of material, and he will also take care of freight. But this money he is not spending from his pocket. He's taking this money from us only. He will charge us later on when he's submitting invoice now. At that time, he will he will charge us for all these parameters. Okay. Then insured freight free. Insured freight free means this logistic, this transportation is insured, and this is freight free means only insurance we have to pay. Freight is free. We don't have to pay for insurance. Sorry, we don't have to pay for freight. Only insurance we have to pay. COD, cash on delivery. Cash on delivery means we will pay to the vendor when he is arriving at our location with material. Freight free. Freight free means we don't have to pay freight. Okay, vendor will pay for freight. In this case and in this case, cost and freight. इसमें भी vendor ही pay कर रहा था material, freight and cost and freight, but वो हमें charge करने वाला था later on. In this case, vendor will pay for the freight, but he will submit invoice and he will take that money, that freight money from us only. But this case, freight is free, so we don't have to pay for freight. Doesn't matter whether vendor is paying or transportation is giving free of cost. Okay, it's not our lookout. Only thing is we don't have to pay for the freight. So like this, you can see rest of the Incoterms. Free on board means he will deliver us, and he will free on board means he will do the free delivery. He will not charge us for the delivery of material. Also, he will not charge us for unloading the material. Okay, so unloading के लिए अलग से charges लगते हैं कभी-कभी. जो ट्रक आता है, जो ट्रक मटेरियल लेके आता है, तो कभी-कभी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, लोडिंग अनलोडिंग फ्री नहीं होता है. तो उसके लिए फ्री ऑन बोर्ड मीन्स योर ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो फ्री एंड योर अनलोडिंग इज आल्सो फ्री. UN not free, so everything will be charged. Free house means he will deliver us to the door. Okay, वहां से फिर आपको अनलोड करके लेना है. So this type of Incoterms you can see all are related to your transportation and logistic. ठीक है, understood? Yes sir. Okay then. We'll move on to next topic. Next topic is very important, guys. Okay, before we do that, see unit number 4, exercise 15 हम लोग का हो चुका है, right?
guys? It is done, right? Create purchase requisition. Yes, sir. Yes, sir. Exercise 16 भी हो चुका है. Create a purchase order with reference to purchase requisition. Yes, sir. Now comes to exercise 17. Enter order acknowledgement. तो ये मैंने कल explain किया था. I will explain this now also. See, order acknowledgement. जैसे मैंने कहा था, order acknowledgement means vendor will confirm that he or she have received purchase order copy to his location. That is called as order acknowledgement. ये जो topic है, this is order acknowledgement. So let me create one PO. I'll quickly create one PO. And purchase organization, purchasing group, company code. Now at the time of PO creation, you see here in the confirmation, at the time of PO creation, if I select this acknowledgement required, then vendor has to compulsory submit the order acknowledgement. And if I does not select this, if I'm not selecting this, and if I leave it blank, this one, then doesn't matter. Then doesn't matter whether vendor is sending acknowledgement or not. Okay. We'll just create the PO and we will send it to the vendor. Vendor ने receive किया है या नहीं किया है, that clarity will not be there. Okay. So if you are creating a purchase order, it's better to go with acknowledgement requirement option. इस small checkbox को select करो. Then here select RA. RA means order acknowledgement. So this is your PO. At the time of PO creation, ये आपको select करना है. This is done. Okay. Save the PO. Save the PO. PO is created 22271. 22271 PO created. Say that that PO is sent to the vendor. जो PO हमने create की है, अब वो vendor को चली गई है, whether print से या फिर email से या फिर EDI method से. Now he will confirm it back. Okay, he can also confirm it back using phone, telephone or email. वो किसी भी method से आपको confirm कर सकता है. He can also call you and say that yes, I have received the purchase order and I will deliver this material on so and so date. That order acknowledgement, you have to again go to ME22N, and in ME22N you have to enter the order acknowledgement given by the vendor. So go to ME22N and go to confirmation tab. In confirmation tab you have to enter these details. Okay, so first here enter RA order acknowledgement. वेंडर ने एक्नॉलेज किया है कि उसे पीओ मिल चुकी है. नाउ डिलीवरी डेट. नाउ वी विल आस्क वेंडर कि भाई हमने पीओ तो क्रिएट किया है, पीओ का डिलीवरी डेट है 14 मार्च, तो आप मटेरियल कब डिलीवर करने वाले हो? तो वेंडर विल से दैट आई विल डिलीवर मटेरियल ऑन सेम डेट. Okay, he can say same date, he can say different date. But assume करो कि now he said that he will deliver material on time. So date enter करना है, whatever date agreed by vendor, that date you have to enter over here. Then time, if you want time also you can enter. Okay, what time he is going to deliver the material. Quantity, how much quantity, is he going to deliver full quantity or is he going to deliver partial quantity? So let's say उसने कहा कि he will deliver 500 quantity. Reference, अगर कोई reference है like you know whether you have received this
confirmation through email, or whether you have received this confirmation through telephone, mention something like this. Okay. So this is your order acknowledgement. You can enter multiple if you want. Let's say उसने फिर बोला कि he will deliver material, rest of the material he will deliver on 15th of March. उसने कहा है कि total PO quantity 1000 है, but he will deliver 500 quantity on 14th of March and he will deliver 500 quantity on 15th of March. So you can mention like this. इसे कहा जाता है ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, नाउ यू कैन सेव इट. योर ऑर्डर इज एक्नॉलेज्ड. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सी इफ दैट वेंडर if he is not delivering material as per agreed date, then we can penalize him. Okay, we can fine him. Okay. So for that, this order acknowledgement is required. Not that big topic. I'll move on to next topic. Next topic is consumable material. Guys, see, now focus here. Consumable material. Consumable material. So this is different than raw material. इसमें दो टाइप के मटेरियल होता है. एक होता है नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल, एक होता है नॉन स्टॉक मटेरियल. नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल एक होता है नॉन स्टॉक मटेरियल. इसको हम लोग बाद में देखेंगे. व्हाट इज नॉन वैल्यूएटेड, व्हाट इज नॉन स्टॉक. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमेबल मटेरियल. So consumable material is a material which get consumed. Okay, very simple. मटेरियल होता है. रॉ मटेरियल क्या कंज्यूम होता है. कंज्यूमेबल मटेरियल इज अ मटेरियल consumable material gets consumed, or you can say आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है. नहीं होता है. एक्चुअली रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू फिनिश गुड्स. Am I audible? Yes, sir. This makes sense, right, or not? Yes. Yes, sir. So, see, रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. वी विल प्रोसेस दैट मटेरियल. वो प्रोसेस हो जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है. जो कंज्यूमेबल मटेरियल है वो कंज्यूम हो जाता है. आई विल टेल यू, यू नो, केमिकल्स कंज्यूम हो जाते हैं, राइट. कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब ऐसा है कि ये वो मटेरियल होता है जो आप यूज करते हैं और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. केमिकल्स ऐसी चीज है जो आप यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाता है. सो दैट इज कंज्यूमेबल. ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल्स जब आप यूज करते हैं तो वो आप यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, राइट. कुछ ऑयल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो यूज करने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. लाइफ खत्म हो जाती है तो आप उसे स्क्रैप कर देते हैं या फिर आप उसे डिस्पोज कर देते हैं. तो वो भी कहा जाता है कंज्यूमेबल. क्योंकि कंज्यूमेबल ऐसे मटेरियल है या तो वो खत्म हो जाते हैं या तो वो कंज्यूम हो जाते हैं या फिर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है. ओके, तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कंज्यूमेबल मटेरियल्स. कोई और एग्जांपल दे सकता है?
जो आप यूज करते हैं और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. Which one? Paper. पेन पेंसिल पेपर. Say stationery, pen, paper, pencil. तो ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है. राइट, पेंसिल यूज करते हैं वो खत्म हो जाती है. स्टेशनरी पेपर यूज करते हैं खत्म हो जाता है. पेन यूज करते हैं उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं उसको. तो पेन भी कंज्यूमेबल हो गया. व्हाट एल्स? बस हो गया, इतना ही है. कॉफी पाउडर. कॉफी, कैन से मिल्क, say safety shoes, you can say uniforms. राइट, यूनिफॉर्म भी आप यूज करते हैं, उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो खत्म हो जाता है, उसे आप स्क्रैप कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं. दैट मीन्स इट इज कंज्यूम्ड. टूल्स, हाँ, टूल्स हो सकते हैं. यस, tools can also be considered as a consumable. And what else? I want one example from each of you. अभी तक किसने बताया? Yes, Aniket, anything? टूल्स ही बताया सर. ओके, कुणाल, समीर, प्रसाद. ओके, कुणाल, प्रसाद, अनिल. Just think harder. You will get lot of examples which are consumable materials. You can say, packaging material. में क्या क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा. बबल रैप देखा है आपने? बबल रैप वो कंज्यूम होता है. कार्टन बॉक्स होता है. पैलेट कंज्यूम नहीं होता है, बट ठीक है, उसके लिए एक अलग मटेरियल टाइप है, आरपीटी करके, रिटर्नेबल पैकेजेस. बट फॉर अ मोमेंट वी कैन कंसीडर पैलेट एज अ कंज्यूमेबल. वुडन पैलेट यू कैन से, वुडन पैलेट कंज्यूम होता है कि मेटल पैलेट जो वो कंज्यूम नहीं होता है. व्हाट एल्स? बहुत एग्जांपल है इंडस्ट्री में, अगर देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पेट्रोल, डीजल, फ्यूल्स, यू कैन, जितने भी फ्यूल्स हैं वो सब कंज्यूमेबल. एक सर्टेन टाइम के बाद तो वो कंज्यूम हो जाते हैं या उनकी लाइफ खत्म हो जाती है. लेबल्स, ग्रेन्स भी आएंगे ना सर? क्या चीज? ग्रेन्स, धान्य. आवाज कर रहा ग्रेन्स. व्हाट इज द स्पेलिंग? धान्य सर, लिकर कंपनीमध्ये जे धान्य वगैरे वापरला तर ते. You can say that, yes. You can say which one? Electrical appliances. Yes, correct. Electrical appliances like your lights. जो लाइट होते हैं आप प्लांट में या कंपनी में लाइट यूज करते हैं, तो एक सर्टेन लाइफ होती है उसकी. उस सर्टेन लाइफ के बाद वो आपको डिस्पोज करना पड़ता है. तो वो, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज कंज्यूम्ड. लाइट्स, बल्ब्स. वॉशर्स रॉ मटेरियल हो जाएगा, राइट? कंज्यूम नहीं होता है ना वो. Grease. सुनाई नहीं दिया. What is it? Grease.
ग्रीस बोला सर. Correct. This is one of the safety equipments. safety equipment. Yes, you Cap. can say helmet Yes. और PPE कहा जाता है उसे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. फर्नीचर फर्नीचर कंज्यूम नहीं होता है, वो एक्चुअली लाइफ लॉन्ग होता है, उसके बाद भी कंज्यूम नहीं होता है वो. एक तो आपको उसे फिर से रीसेल कर सकते हैं आप, या फिर आपको बहुत उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है तो वो कंज्यूम नहीं कंसिडर कर सकते हैं. एक और चीज़ है, ऐसी मटेरियल को आपको कंज्यूमेबल में कंसिडर कर सकते हैं जिसकी लाइफ थोड़ा सा अप्रॉक्स हो. उसकी लाइफ अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर उसे हम कंज्यूमेबल नहीं कंसिडर कर सकते. वैसे तो फिर आपकी जो मशीन्स हैं वो मशीन्स भी कंज्यूमेबल हो जाएगी, राइट. मटेरियल्स है जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा है उन्हें एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एसेट. होता है मशीन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड. अगर कुछ लैंड आपने खरीदा है तो वो लैंड भी आता है आपका एसेट्स में. So I hope you guys got the idea about consumable, right? Yes, sir. Yes, sir. Good. I'll delete this. एसेट समझ में आया. एसेट भी ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, एसेट्स उन्हें कहा जाता है. लाइक अगर आप कुछ बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग, लैंड, या फिर फर्नीचर, मशीन्स, और क्या हो सकता है एसेट्स में. आप अगर कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स भी आपके एसेट्स कंसिडर होते हैं. इक्विपमेंट अलग है, मशीन अलग है. व्हीकल खरीदते हैं, व्हीकल, नहीं तो अगर आप कोई ट्रक खरीदते हैं या फिर आप फोर्कलिफ्ट है, ऐसा कुछ अगर आप खरीदते हैं तो दैट इज एसेट. नाउ एसेट इज नॉट एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बस आइडिया दिमाग में रख देना व्हाट इज एसेट. नाउ वी विल कम बैक टू कंज्यूमेबल. कमिंग बैक टू कंज्यूमेबल. कंज्यूमेबल देखो गाइस, ऐसी चीज है जो कंज्यूम हो जाती है. अब इस पे दो टाइप्स हैं. आपका नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल, दूसरा है नॉन स्टॉक मटेरियल. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज नॉन वैल्यूएटेड. नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल, इट इज अ कंज्यूमेबल ऑफ कोर्स. सो इट इज अ कंज्यूमेबल the consumable material whose value is not included in inventory. So a non-valuated material is a material whose material value not included in the inventory. What is inventory? We need to understand now, right? Inventory कोई बता सकता है what is it? Storage. So inventory is actually stock of material. Say in simple words, if you see stock of material. डिटेल लिस्ट मतलब इन्वेंटरी ना सर. क्या इन्वेंटरी डाटा रहता है ना सर. क्या इन्वेंटरी मीन्स डाटा रहता है ना, जो अपने पास मटेरियल अपने स्टॉक करके रखा है, उसका जो भी अपन डाटा बना के रखेंगे उसको इन्वेंटरी कहा जाता है ना. डाटा उसे नहीं कहा जाता जो हम मटेरियल फिजिकली हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है
उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। जो मटेरियल आपके, समझो आपका कोई प्लांट है या फिर आपका कोई वेयर हाउस है, उस एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है वेयर हाउस। वेयर हाउस जो होता है, उस वेयर हाउस के अंदर में फिजिकली जितना मटेरियल अवेलेबल होता है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। एग्जांपल के लिए एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में एक मटेरियल है, लेट्स से मटेरियल ए। मटेरियल ए की स्टॉक है 200। एक और मटेरियल है, लेट्स से मटेरियल बी। मटेरियल बी का स्टॉक है 500, एंड सो ऑन। लाइक दिस यू हैव n नंबर ऑफ मटेरियल। एक वेयर हाउस में कितने भी मटेरियल्स हो सकते हैं, राइट? हजारों मटेरियल्स होते हैं। तो each of them is having certain quantity, physical quantity present in the warehouse. तो इस स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंट्री। तो टोटल इन्वेंट्री को अगर हम बोलेंगे, अब टोटल इन्वेंट्री क्या हो गया? फिर टोटल इन्वेंट्री हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर all materials. So it is stock available for all materials. तो अब टोटल इन्वेंट्री का मतलब हो गया 200 प्लस 500 प्लस जो भी है, इन सब का जो भी टोटल है उसे कहा जाएगा इन्वेंट्री। करेक्ट है? टोटल इन्वेंट्री कहा जाएगा उसे। आई विल रिपीट इट अगेन। सी, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ मटेरियल। स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब फिजिकली जो मटेरियल का स्टॉक आपके पास प्रेजेंट है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। एग्जांपल के लिए आपका एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में लेट्स से दैट यू हैव अ मटेरियल ए। मटेरियल ए की क्वांटिटी आपके पास है 200,000। तो इस मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी हो गई? इस मटेरियल की इन्वेंट्री हो गई है 200। लेट्स से मटेरियल बी है, उसका स्टॉक आपके पास प्रेजेंट है 500। तो मटेरियल बी की इन्वेंट्री कितनी हो गई? मटेरियल बी की इन्वेंट्री हो चुकी है 500। मतलब ये स्टॉक ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट इन्वेंट्री। यू कैन से इट्स अ टेक्निकल नेम फॉर स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब आ गया टोटल इन्वेंट्री। सो टोटल इन्वेंट्री विल बी summation of all the materials stock present in the plant. It is nothing but summation of all plants. Total inventory is nothing but summation of stock of all the material present in your plant or warehouse. That is called as total inventory. Okay, so non-valuated material एक ऐसा material होता है which is not considered as inventory material. इसके दो reasons है guys. First reason है, हम लोग non-valuated material को inventory में क्यों नहीं consider करते हैं? इसके दो reasons है. First reason है, इसकी जो value होती है वो बहुत कम होती है. है ये अल्टीमेटली कंज्यूम होने वाला है, राइट? सो कंज्यूम होने वाला है, तो ऐसे मटेरियल हम लोग इन्वेंटरी में क्यों कंसीडर करें जो कंज्यूम होने वाला है? लॉजिकली देखा जाए कंज्यूमेबल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो आपको या तो सेल करने हैं या फिर आपको प्रोडक्शन के लिए इशू करने हैं, रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना है, प्रोसेस करना है, ऐसे मटेरियल आप इन्वेंटरी में कंसिडर करेंगे। बट ऐसे मटेरियल आप इन्वेंटरी में कंसिडर ही क्यों करेंगे जो आज या कुछ दिनों में कंज्यूम होने वाला है। सो दूसरा रीजन ये होता है, फर्स्ट रीजन ये है कि इसकी वैल्यू काफी कम होती है, और दूसरा रीजन ये है कि ये जो मटेरियल है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और यू कैन से सेल्स और एनी अदर पर्पस। कंजम्पशन ये एक पर्पस छोड़ के, अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसका कंजम्पशन छोड़ के और कोई पर्पस नहीं है
और कोई है ना, तो प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला है ना तो सेल्स के लिए यूज होने वाला है, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल। समझ में है? Guys, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now we will see how to create the non-valuated material. Okay, we'll go to MM01 and एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है अकाउंटिंग व्यू। बाकी नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल जो होता है वो आपका, बाकी जो व्यूज है वो सारे व्यूज सेम होते हैं। ओनली नॉन वैल्यूएटेड जो मटेरियल है उसमें अकाउंटिंग व्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल में अकाउंटिंग व्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अकाउंटिंग व्यू हम लोग तब क्रिएट करते हैं जब वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। फर्स्ट आई विल शो यू, मैं पहले रॉ मटेरियल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये एक रॉ मटेरियल है, okay? मैं इसको दिखाता हूँ। यू सिलेक्ट बेसिक वन एंड अकाउंटिंग। बेसिक वन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आई वांट टू शो यू कि ये कौन सा मटेरियल है। तो हियर यू सी दिस इज रॉ मटेरियल। नाउ गो टू अकाउंटिंग। नाउ हियर यू सी गाइस, यहाँ पे देखो टोटल स्टॉक इज 18,039। तो अकाउंटिंग व्यू इसलिए यूज होता है ताकि उसकी वैल्यूएशन हो सके। ये है आपकी इन्वेंट्री। टोटल स्टॉक मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्री। और टोटल वैल्यू मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्री वैल्यू। टोटल इन्वेंट्री वैल्यू है इसकी समथिंग 176,000 यूरोस और ये है इसका टोटल स्टॉक। आप एमएमबी में जाके चेक कर सकते हैं। कॉपी मटेरियल और गो टू एमएमबी। Go to MMB, enter the material number। यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक है 17,989। यहाँ पे कितना है? 8,039। ओके, तो डिफरेंस कितना है? 89, 39, ऑलमोस्ट 50 का डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पे कहीं और होगा 50 का। तो देखो ये ट्रांसफर में पड़ा हुआ है 50 स्टॉक। अगर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, विल टेक सम अदर मटेरियल, लेट्स से 3528। इसका तो स्टॉक ही नहीं है। इसको देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखिए ये एक मटेरियल है 3228। मटेरियल के लिए कोई परचेस ऑर्डर क्रिएट किया है, इसलिए ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके लिए कोई ऑर्डर ओपन है, इसके लिए कोई परचेस ऑर्डर ओपन है। ओके, और ये ब्लॉक स्टॉक में 100 स्टॉक पड़ा हुआ है। तो देखो इसका टोटल स्टॉक कितना हो गया? 1000 ये और ये 100।
ब्लॉक का कंसिडर नहीं होगा, बट फिर भी ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सॉरी फॉर दिस। 307 देखते हैं, नहीं 3307 तो नहीं है, देख लेते हैं। रॉ मटेरियल है, इससे अच्छा तो फिर वही था। तो देखो गाइस, इसके 1000 क्वांटिटी यहाँ पे है और ब्लॉक स्टॉक में है 100। अब देखते हैं इसकी इन्वेंट्री स्टॉक कितना है। सो इस मटेरियल को कॉपी करो, गो टू MM03, बेसिक डेटा 1 और अकाउंटिंग। बेसिक डेटा 1 में देखो यहाँ पे इट इज अ रॉ मटेरियल। नाउ गो टू अकाउंटिंग व्यू, एंटर प्लांट। यहाँ पे देखो इसका टोटल स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1100। Why it is given 1100? क्योंकि if you check in MMB, only 1000 this and block stock 100. So total हो गया है 1100. Okay. बाकी और कोई स्टॉक है नहीं इस मटेरियल का। So this is your total stock, और इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 11,000। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे S सिलेक्ट किया है, इसलिए स्टॉक इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अगर यहाँ पे आपने V सिलेक्ट किया, मूविंग एवरेज प्राइस, तो स्टॉक विल बी मल्टीप्लाइड बाय मूविंग एवरेज प्राइस। दैट विल इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मीन्स ये टोटल स्टॉक है, तो यू कैन से दिस इज इन्वेंट्री। ये टोटल वैल्यू है, तो यू कैन से इट इज अ इन्वेंट्री वैल्यू। You can say that this is a inventory value. Clear है guys? तो नॉन वैल्यूटेड जो मटेरियल होता है उसमें ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, इसलिए हम ये सब हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये सब रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग व्यू उसके लिए क्रिएट नहीं करते हैं। ये बात अच्छे से लिख लो कहीं पे। Non-valuated material will never have a accounting view. Now I will go and I will create a non-valuated material. Go to MM01, select mechanical engineering, then here select non-valuated material. You see non-valuated material, this one. बाकी प्रोसेस सेम है गाइस, बाकी प्रोसेस कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज यहाँ पे देखो आपको ना अकाउंटिंग व्यू नहीं दिखेगा, यहाँ सिलेक्शन ही नहीं है। आप अकाउंटिंग व्यू आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। ये एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब सिलेक्ट बेसिक डेटा 1, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर टेक्स्ट, जनरल प्लान डेटा 1 एंड नो अकाउंटिंग। Continue. Enter the material. Let's say I will enter. We'll create something like you know you can say diesel or petrol. Petrol is a consumable. पेट्रोल का यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा? लीटर, राइट? लीटर। मटेरियल ग्रुप देखते हैं। फ्यूल के लिए कोई मटेरियल ग्रुप देखना पड़ेगा। अरे ये सिस्टम में है ही नहीं, तो जो है वह अभी के लिए तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट मटेरियल ग्रुप आपको फ्यूल के लिए सर्च करना है। यहाँ पे जाना है, ये ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्यूल सर्च करना है। जो भी मटेरियल ग्रुप आपको डिस्प्ले करेगा वो यूज करना है। अभी मेरे सिस्टम में कुछ है नहीं, तो मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। उसके बाद जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस पूरा सेम ही है। गिव मी 1 सेकंड, मेरे सिस्टम में थोड़ा ग्लिच है। ये सबसे पहले देना पड़ता है प्लांट नंबर एंड एवरीथिंग। कहाँ
पे दे सकता हूँ मैं। रिक्वायर्ड नहीं है गाइस, बट मेरे सिस्टम में ग्लिच है इसलिए मैं ये एक और व्यू क्रिएट कर दिया मैंने। गो टू बेसिक डेटा, यहाँ पे हो गया परचेसिंग में अब मैं परचेसिंग ग्रुप एंटर करना है, परचेसिंग वैल्यू की, देन JR प्रोसेसिंग टाइम ये एंटर किया, देन परचेस ऑर्डर टेक्स्ट में आपको कुछ मेंटेन करना है तो मेंटेन कीजिए, देन लास्ट वन इज प्लांट डेटा स्टोरेज। यहाँ पे भी इफ यू वांट टू मेंटेन एनीथिंग यू कैन मेंटेन, otherwise leave it blank and your non-valuated material is created. Click on save and your non-valuated material is created. Click on the message, save the number, save this number somewhere. Okay. So your material is created. Okay. Create a purchase order for this. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है गाइस, जब हम नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल के लिए परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी कंपलसरी है। देखो मैं एक PO क्रिएट कर रहा हूँ, एक PO क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देखो मैसेज दे रहा है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी इज मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी फॉर मटेरियल 3556। नॉन वैल्यूएटेड जो मटेरियल होता है उसका इन्वेंट्री में वैल्यूएशन नहीं होता है, तो इसलिए अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी कंपलसरी है। यहाँ पे के एंटर करो एंड अब आपने के एंटर किया है तो आपको कॉस्ट सेंटर भी देना पड़ेगा कि कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए आप इस मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं। ये देखो ये आपका प्रोडक्शन का मटेरियल नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज कंज्यूमेबल, तो आप इसलिए इसका अकाउंटिंग व्यू नहीं होता है। अब अकाउंटिंग व्यू नहीं होता है तो क्या होता है, अकाउंटिंग व्यू नहीं है तो इसका जो भी यू कैन से इसके जो भी एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होने चाहिए। प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल हम लोग प्रोक्योर करते हैं उसके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन क्लास में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब आप रॉ मटेरियल बनाते हैं तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोग वैल्यूएशन क्लास मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग व्यू में। तो प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उसका जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन क्लास थ्रू रिकॉर्ड हो जाता है एक GL अकाउंट में। बट जो कंज्यूमेबल मटेरियल होता है उसमें अकाउंटिंग व्यू ही नहीं है। अकाउंटिंग व्यू नहीं है तो सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये जो भी खर्चा हम लोग कर रहे हैं ये खर्चा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल करते हैं तो सिस्टम को पता चल जाता है वैल्यूएशन क्लास से कि वो जो प्रोडक्शन रिलेटेड मटेरियल है वो हम लोग क्यों खरीद रहे हैं, उस पर हम लोग खर्चा कर रहे हैं तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो सब सिस्टम को पता चल जाता है वैल्यूएशन क्लास से। वैल्यूएशन क्लास कंज्यूमेबल मटेरियल के लिए अब नहीं होता है तो फिर क्या करें, तो इन दैट केस वी हैव टू मैंडेटरीली गिव अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। गाइस यू अंडरस्टूड दिस? सर सर वो कॉस्ट सेंटर में वो आपने 1000 दिया तो वो मतलब उस पे 1000 ही क्यों दिया, मतलब 1000 ऐसे दिया हम लोग कोई और से। ओके सर। जैसे हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं तो लेट से ये रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट से या फिर लॉजिस्टिक्स से, तो मैं देखता हूँ ट्रांसपोर्ट का कोई कॉस्ट सेंटर है क्या, देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई है नहीं, लॉजिस्टिक का देखते हैं, लॉजिस्टिक के लिए कोई है क्या, तो ब्लॉक एस्ट्रिक ऐसे सर्च करते हैं तो नथिंग फाउंड। और क्या हो सकता है, स्टोर या फिर डिस्पैच एक सर्च करता हूँ। ओके तो उसके लिए भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट सर्च कर सकते हैं आप, प्रोक्योरमेंट का भी कॉस्ट सेंटर यूज कर सकते हैं। ओके सर। कुछ ढूंढना पड़ेगा मुझे, मोटरसाइकिल सेल्स
प्लान मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं आप लोग। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 4300। क्वांटिटी एंटर करो, कितना क्वांटिटी यू आर बाइंग, and your PO is created. Okay, your PO is created. Save it, and your PO is created. One second, there is an error in my system. Let me remove this check and save the PO. Now you see guys, my PO is created. Okay, तो चलो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो इस पे। गिव मी 5 मिनट्स, तब तक आप लोग मटेरियल क्रिएट करो और PO क्रिएट करो। मुझे बस 2 मिनट देना गाइस। ओके, आई एम हियर ओनली बट आई एम ऑन म्यूट। Okay. Hey, I'm back. So is it okay? All right, you guys are able to create. यस सर। सर एक बार वो कैश सेंटर का डिफाइन कर देना उसको। कुणाल, तुम्हारा आवाज बहुत कम आता है माइक। Which one you said? कॉस्ट सेंटर, उसको एक्सप्लेन कर दो एक बार क्या है। श्योर श्योर, ठीक है, एक 5 मिनट रुक जाओ। ओके, सबका माइंड शायद मटेरियल मास्टर में है या फिर PO क्रिएशन में है। ओके, सबका PO बनने तो 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सबका माइंड शायद डाइवर्टेड है। 2 मिनट।
So anybody facing any error, any issue till here? I hope not, because it is not very much different. Okay. Anybody who wants to have any detailed explanation about anything, any questions related to non-valuated? सबका पीयू बन गया है? किसका किसका पीयू बना है? सर इसमें एक एरर आ रहा है। One second. ये कहाँ पे एरर आ रहा है कुणाल? पीयू क्रिएशन में पीओ बनाने टाइम। हाँ LIT है क्या यूनिट ऑफ मेजर? चेक करो एक बार। आई डोंट थिंक LIT होना चाहिए। लीटर चेक करो, L होना चाहिए, L। तुमने शायद गलती से LIT सेलेक्ट किया है। और अब क्या होगा ना कुणाल, अब वो यूनिट ऑफ मेजर चेंज नहीं करने देगा, तो तुम्हें मटेरियल नया ही बनाना पड़ेगा। लीटर है सर, लीटर। हो गया क्या? डन? मुझे आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को गाइस। लीटर है या L है? L है या LIT या और कुछ है? लीटर है, लीटर है। उसका कोड क्या है? L है या LIT है या LTR है? यल है सर, यल भी है और LIT भी है। ओके, तो L सिलेक्ट करो, सब लोग L सिलेक्ट करो। LIT जो है, आई डोंट थिंक LIT लीटर होगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। लीटर नहीं होगा LIT, कुछ और होगा। मेरे सिस्टम में तो LIT नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फेम्टोलीटर सर सर ये सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, मतलब हाँ, ये देखो मेरा भी सिस्टम काफी स्लो। यहाँ पे चेक करो रिस्पांस टाइम कितना है, एक बार चेक करो सब लोग, बताना एक बार मुझे क्या है रिस्पांस टाइम। कहाँ सर? ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रिस्पांस टाइम है। ओके सर, एक बार ये चेक करो, ये 2000 के नीचे होना चाहिए।
सर रिस्पॉन्स टाइम कुछ 11,000 के भी ऊपर। 11,000 मतलब इट्स वे टू हाई, सर्वर का कुछ इशू है आई थिंक, दैट इज नॉट अ गुड। ओके, थोड़ा वेट करो, अगर 11,000 से कम रहता है, 2,000 के अंदर होना चाहिए बेसिकली, लेस देन 2,000 होना चाहिए। थोड़ा वेट करो, शायद कुछ कनेक्टिविटी का इशू होगा, बट अगर फिर भी उतना ही रहता है रिस्पॉन्स टाइम तो इमीडिएटली मुझे बताओ, हम लोग सर्वर प्रोवाइडर को बताएंगे। आई थिंक या तो इलियास है या फिर हिमांशु, दो में से कोई सर्वर प्रोवाइडर है, उनको बताना। मेरे इसमें तो एलटीआर नहीं है, आप लोग चेक करो। एनीवे लीटर यूज करो गाइस, लीटर इज बेटर। Okay. सर 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 सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है सर।
सिस्टम काफी स्लो है, एक्चुअली मेरा भी सिस्टम काफी स्लो है। सबका ही सिस्टम स्लो है गाइस या सिर्फ अनिकेत का है? सही है सर। सबका ही है। सर अभी तक मटेरियल भी नहीं हुआ क्रिएट, एक बार वही चल screen रहा है। share करो, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार स्क्रीन शेयर करो। मुझे वो रिस्पांस टाइम दिखाना है, नीलेश सर को भेजना पड़ेगा। अभी ये हो रहा है इसलिए वो नहीं दिखाएगा, ये 0 दिखा रहा है। ये हो गया सर, ये देखो। ठीक है, रिस्पांस टाइम ओपन करो। हाँ बस ऐसे ही रखो, 1 सेकंड ऐसे ही रखो, 1 सेकंड। ओके डन। हेलो सर। यस हाँ सर, हमने वो अकाउंट असाइन कैटेगरी में केस सिलेक्ट किया है ना, यस यस। उसका मतलब क्या होता है? और कॉस्ट सेंटर होता है ना, उसके बाद वो मैंने कॉस्ट सेंटर का नंबर पूछा तो 1000 डाला तो क्यूब क्रिएट हो गया। हेलो सॉरी मैं म्यूट पे बात कर रहा हूँ। 1000 एक्सेप्ट कर लिया राइट? हेलो हाँ कर लिया सर। वो क्या होता है कॉस्ट सेंटर? मतलब कि आपने जैसे दिखाया था वैसे मैंने डाल दिया तो क्रिएट हो गया। क्या मतलब क्या होता है उसका? मैं बताता हूँ, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। First of all, see guys, this is all related to finance. This is related to financial transactions. Okay. देखो आप, for example, let's assume that you are a distributor. आप एक wholesale dealer हो, assume करो. Okay. तो आप एक wholesale dealer है, तो आप जो local shop owners हैं, उनको आप राइट आप एक होलसेल डीलर है, लेट्स से आप एक होलसेल डीलर है मुंबई रीजन के लिए। आप मुंबई रीजन में जितने भी शॉप ओनर्स हैं उन्हें आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप उन्हें सेल कर रहे हैं। तो हर जितने, लेट्स से मुंबई रीजन में 200 शॉप्स हैं जहां पे आप अपना मटेरियल सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग के लिए आप हर जो ओनर है, जो शॉप ओनर है, उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे। जो भी आप उसको मटेरियल सेल कर रहे हैं या फिर आप जो भी मटेरियल उससे ले रहे हैं या फिर जो भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस के लिए आप एक उसका अकाउंट बनाएंगे। टैली पता है आपको राइट? टैली देखा है आपने? हाँ सर। टैली में कैसे जो भी जिसके साथ भी आप बिजनेस करते हैं उसके लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं, बराबर राइट? वैसे ही ये जो 200 लेट्स से 200 शॉप ओनर्स हैं उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो आप सबके लिए अकाउंट बनाएंगे सिस्टम में, राइट? और जब भी आप इनके साथ कुछ बिजनेस करेंगे तो उनका एक आप नंबर होता है, उस नंबर को कहा जाता है लेट्स से कॉस्ट सेंटर नंबर। तो वो कॉस्ट सेंटर नंबर आप वहां पे एंटर करेंगे। तो लेट्स से अब जब भी आप इन 200 शॉप ओनर्स में से किसी को भी आप कुछ सेल कर रहे हैं या आप उनसे आप अगर कुछ खरीद भी रहे हैं, इसके उल्टा भी होता है। ये लेट्स से यू आर होलसेल परचेसर, अलग होता है, परचेसर अलग होता है। होलसेल परचेसर वो होता है जो इन 200 शॉप्स ओनर से या फिर फार्मर से या फिर जो रीजनल मैन्युफैक्चरर्स है उनसे मटेरियल परचेज करता है। अब आप ये 200 शॉप ओनर से या फिर जो रीजनल मैन्युफैक्चरर्स है उनसे आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सिस्टम में उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, राइट? आप इस
जो भी ये 200 शॉप ओनर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है, उनके साथ आपको बिजनेस करना है तो उनका हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे सिस्टम में। उस अकाउंट को ही कहा जाता है कॉस्ट सेंटर नंबर। अब ये हो गया ओवरऑल प्रोसेस। अब एसएपी में क्या होता है, ऐसे समझो कि प्लांट है आपका, यू कैन से प्लांट इज द, आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट इज द, you can say he is the father, but you can say he is the main accountant है वो। अब ये प्लांट पे जब भी आप कुछ परचेस करते हैं, लेट्स से आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ, तो ये मेन अकाउंटेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन के लिए एक अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा जो कि है कॉस्ट सेंटर नंबर। प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा होता है, इस प्रोडक्शन के साथ जो भी बिजनेस होता है, तो इसके लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हैं या उसके लिए अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप इस प्रोडक्शन के लिए करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा एक अलग से अकाउंट में। उस अकाउंट को कहा जाता है कॉस्ट सेंटर। विद इन द प्लांट हो रहा है। ये जो पहला एग्जांपल था इसमें क्या था, इसमें एक परचेसर अलग था और मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरर्स थे। ये एग्जांपल के लिए पता है। हमारे एसएपी में क्या होता है, प्लांट के अंदर ही देखो, प्रोडक्शन अगर कुछ खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोडक्शन ने खरीदा है कुछ हैंड ग्लोव्स खरीदे प्रोडक्शन ने, तो क्या प्रोडक्शन पेमेंट करता है वेंडर को? क्या प्रोडक्शन पेमेंट करता है वेंडर को? नहीं करता, राइट? पेमेंट कौन करता है? पेमेंट करता है फाइनेंस वाले, राइट? तो समझो कि पेमेंट कर रहा है आपका मेन अकाउंटेंट, मतलब प्लांट लेवल पे या कंपनी कोड लेवल पे पेमेंट जाता है, प्रोडक्शन नहीं जाता है। प्रोडक्शन पेमेंट नहीं करता है वो प्लांट, जिस प्लांट में ये प्रोडक्शन है वो प्लांट उसे वेंडर को पेमेंट देता है। बट खरीदा तो प्रोडक्शन ने है और पेमेंट कर रहा है प्लांट, मतलब ऐसे समझो कि छोटा भाई खरीद रहा है और बड़ा भाई पेमेंट कर रहा है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा, राइट? कौन से किसने खरीदा है और क्यों खरीदा है और वो कैसे कंज्यूम हो रहा है, क्या पर्पस है उसका, ये सब इंडस्ट्री में हमें हिसाब रखना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर कुछ खरीद रहा है तो उसका हिसाब किताब रखना ही पड़ता है। फाइनेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी कुछ भी खरीदेगा और बड़ा भाई पेमेंट करते रहेगा, प्लांट पेमेंट करते रहेगा, तो इससे तो पूरा हम लोग कंपनी हमारा लॉस में चला जाएगा, राइट? इसलिए प्रोडक्शन या फिर अगर क्वालिटी या फिर कैन से मेंटेनेंस, इनके लिए जब भी कुछ हम लोग खरीदते हैं तो उसका जो भी एक्सपेंस है या उसके लिए जो भी हमने पैसा खर्च किया है उसका रिकॉर्ड रहता है। उस रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड रहता है वो रहता है कॉस्ट सेंटर में। इसलिए क्या होता है, हर जो भी डिपार्टमेंट है उसका अलग से कॉस्ट सेंटर होता है। प्रोडक्शन का लेट से है कुछ कॉस्ट सेंटर 2000, क्वालिटी का है कॉस्ट सेंटर लेट से 3000, ऐसे कुछ। मेंटेनेंस का लेट से मेंटेनेंस का कॉस्ट सेंटर है कुछ 5000, समथिंग लाइक दिस। तो कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट सेंटर हेल्प करता है फाइनेंस को ये समझने के लिए कि मेंटेनेंस के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है, मेंटेनेंस में कितना बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे साल में आपने मेंटेनेंस पे, जो भी मेंटेनेंस इक्विपमेंट है, मेंटेनेंस इक्विपमेंट में समझो आपने 20 लाख खर्च कर दिए, 20 लाख आपने खर्च किया है, तो फाइनेंस को कैसे समझेगा कि मेंटेनेंस के लिए 20 लाख खर्च हुआ है, कैसे हुआ है? तो वो समझ में आता है कॉस्ट सेंटर से। फाइनेंस क्या करता है, फाइनेंस 5000 कॉस्ट सेंटर ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना एक्सपेंस हुआ है और वहां से फाइनेंस वालों को पता चल जाता है कि मेंटेनेंस के लिए 20 लाख खर्चा हुआ है, क्वालिटी के लिए 10 लाख खर्च हुआ, प्रोडक्शन के लिए 50 लाख खर्चा हुआ है। ये उनको समझ में आता है कॉस्ट सेंटर की वजह से, क्योंकि
जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, जिससे फाइनेंस को पता चल जाता है कि जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम लोग कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, उन मटेरियल पे हम लोग साल में कितना खर्चा कर रहे हैं, उनमें कितना हम लोग मनी उस पर खर्चा कर रहे हैं, वो सिस्टम को पता चल जाता है कॉस्ट सेंटर से। समझ में आ रहा है गाइस? आप भी देखो, एक सिंपल चीज है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से दैट यू आर ओनर ऑफ अ शॉप, आप एक शॉप ओनर है, शॉप ओनर है, तो आप हिसाब रखते हैं कि मुझे लेट्स से सर, आपका स्क्रीन शेयर में होगा, कुछ पैसा खर्च करना है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। आप दिख रहे? हाँ दिख रही सर। यस सर, अब दिख रही। तो ये इसके पहले ये दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? नहीं सर, नहीं सर, ये यार बताना था। मुझे लगा मेरा अकेला की प्रॉब्लम। बस समझ गया सर। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। देखो गाइस, मैं इसको अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कंसिडर करो कि आप एक शॉप के ओनर है, तो आप शॉप के ओनर है, तो लेट्स से आपकी एक मोबाइल शॉप के ओनर है। तो आप क्या करेंगे, आप जो लेट्स से सैमसंग है, उसके बाद नोकिया है नहीं है पता नहीं अभी, बट एप्पल है, तो इन सब से आप मोबाइल खरीदेंगे और अपने स्टोर में उसे सेल के लिए रख देंगे, राइट? हर एक का हिसाब किताब रखना है आपको। सैमसंग से आपने कितना खरीदा है, नोकिया से कितना खरीदा है, हर एक का आपको हिसाब रखना है, राइट? बराबर। आप क्या करेंगे, हर एक के लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम लोग करते हैं, राइट? हम लोग एक छोटा सा रजिस्टर रखते हैं, उस पे हर एक का अलग अलग हिसाब रखते हैं। वो अलग अलग हिसाब मतलब क्या हो गया, अकाउंट हो गया। तो सेम वे जब आप प्लांट में काम करते हैं, तो प्लांट भी हिसाब रखता है। प्लांट हिसाब रखता है कि प्रोडक्शन ने कितना खर्चा किया, क्वालिटी ने कितना खर्चा किया, मेंटेनेंस ने कितना खर्चा किया। प्लांट भी हिसाब रखता है कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना कितना खर्चा किया। अब फाइनेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में उन्हें पता चलता रहे कि कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से डिवीजन में कितना खर्चा हो रहा है या कितना मनी हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं। फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है। बैलेंस शीट में उन्हें दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है और कहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए उन्हें खर्चे का हिसाब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो लोग खर्चे का हिसाब रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हर जो डिवीजन है या एरिया है, उस एरिया के लिए कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। वो लोग उस लेट्स से कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर है लेट्स से 2000, तो प्रोडक्शन पे साल में जितना भी पैसा खर्चा होगा आपको, छोटी सी चीज या तो हैंड ग्लोव्स होगा या कुछ भी होगा, तो जो भी प्रोडक्शन के लिए आप खरीदेंगे वो खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है कॉस्ट सेंटर 2000 में। ये हेल्प करता है एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट मैच के लिए। फाइनेंस के लिए मैंने पहले ही कहा था, ये फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें दिखाना पड़ता है कि खर्चा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना है, डिप्रिसिएशन कितना है, वो सब उन्हें दिखाना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉस्ट सेंटर मेंटेन करते हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर उन्हें पता चल सके कि हम लोगों ने कहाँ पे कितना एक्सपेंस किया है, और बाद में बैलेंस शीट मैच करने के लिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है ना, राइट? सुना है आपने? हाँ यस सर। तो प्रॉफिट तो सेल में से पता चल जाएगा उनको, बट लॉस कहाँ से पता चलेगा? लॉस पता चलता है कि हर डिपार्टमेंट पे हमने कितना खर्चा किया। बैलेंस शीट जो होती है वो हम उन्हें मैच करनी ही पड़ती है, 0 to 0 आना चाहिए। अगर उस साल में उन्होंने 50 करोड़ खर्चा किया
तो उन्हें 50 करोड़ में से एक एक रुपए का हिसाब मैच करके देना पड़ता है कि 50 करोड़ खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। उसको बोला जाता है बैलेंस शीट। और वो बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर वो लोग कॉस्ट सेंटर बनाते हैं कि कॉस्ट सेंटर 2000 पे 50 लाख खर्चा हुआ है, इस अलग कॉस्ट सेंटर पे इतना खर्चा हुआ है, वो सब उन्हें दिखाना पड़ता है। इसलिए बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है, इसके लिए कॉस्ट सेंटर को बनाया जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब देखो, जो आपका रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें वैल्यूएशन क्लास हम लोग मेंटेन करते हैं। वैल्यूएशन क्लास मेंटेन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सिस्टम को अपने आप पता चल जाता है कि कौन सा कॉस्ट सेंटर यूज करना है या कौन सा जनरल लेजर अकाउंट यूज करना है। बट नॉन वैल्यूएटेड जो मटेरियल होता है उसमें वैल्यूएशन क्लास नहीं होता है, अकाउंटिंग व्यू ही नहीं होता है। तो अकाउंटिंग व्यू नहीं होता है तो सिस्टम को पता नहीं चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप ये मटेरियल खरीद रहे हैं। इसलिए पीओ क्रिएट करते टाइम आपको कॉस्ट सेंटर नंबर मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लीव इट एट दिस पॉइंट। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी हम लोग करते हैं, मटेरियल परचेस करते हैं, मटेरियल हम लोग सेल करते हैं, इसका बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। और जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। फाइनेंस का मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फाइनेंस को हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस मतलब अगर आपने कहीं पे खर्चा किया है, एक्सपेंस हुआ है, तो आपको दिखाना पड़ता है कि वो खर्चा क्यों हुआ, और खर्चा हुआ है तो फिर आपको बताना पड़ता है कि वो खर्चा क्यों हुआ है और उसका क्या यूज हुआ है। अगर सेल हुआ है तो सेल हुआ है तो आपको दिखाना पड़ता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको बताना पड़ता है, और प्रॉफिट होने के बाद वो मनी कहाँ पे है, प्रॉफिट का पैसा कहाँ पे है, वो भी दिखाना पड़ता है। वैसे ही एक्सपेंस में भी आपको दिखाना पड़ता है कि एक्सपेंस कहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है, और एक्सपेंस करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया है, वो भी आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर नहीं समझा है ना तो लीव इट, कि आप जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे। ओके, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेल मी, आपका स्पीड अभी भी वैसा ही है क्या? मेरा तो 26,000 चल रहा है। 26,000। एक काम कर सकते हैं गाइस, कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? मुझे ना एक और फोटो लेना है। मुझे ना सिस्टम का आपका आईडी चाहिए था, सर्वर आईडी चाहिए था। हमने मैं करूँ सर? हाँ करो, पर करो प्लीज। अब 9,000। ये वाला एक बार रिस्पॉन्स टाइम को ओपन करो, 1 सेकंड। हाँ, कीप इट दैट वे। नाउ डू वन थिंग, वो जो लॉन्च पैड है ना, SAP लॉन्च पैड, वहां पे जाना एक बार, जो छोटा वाला आइकन आता है। कहाँ पे सर? नहीं ये नहीं, नीचे क्लिक करो, जो SAP का लॉगिन है ना नीचे, उस पे ये देखो SAP लॉगिन 740 है ना, उस पे क्लिक करो। ये आपका सिस्टम है ना, SAP MM। यस सर। इसे सिलेक्ट करो, ऊपर जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करो। बस एक सेकंड, मुझे ये डिटेल्स चाहिए। ये एक्चुअली ना पता चलता है फिर कि सर्वर कौन है, प्रोवाइडर कौन है। हमारे पास दो, डेल्फी के पास 2 सर्वर प्रोवाइडर हैं, एक इतिहास करके है हैदराबाद और एक हिमांशु करके है। तो ये डिटेल्स उनको चाहिए, ठीक है? ओके ठीक है, फिर आज नहीं करते कुछ, नॉन वैल्यूटेड को यहीं रोक देते हैं। वैसे भी नहीं हो पाएगा, राइट? प्रैक्टिस नहीं होती है, इरिटेटिंग होता है, आई नो। इतना ज़्यादा स्पीड होता है ना तो कभी कभी इरिटेटिंग भी होता है। तो ठीक है, मैं नीलेश सर को इन्फॉर्म करता हूँ, देखते क्या बोलते हैं। अच्छा,
प्रसाद, राइट? कल तुम्हारा इश्यू सॉल्व हुआ वो? नहीं सर, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? मैं एक बता देता हूँ, हर बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। सर उसके मैंने क्या किया, कल रात को मैंने अनइंस्टॉल किया, मैं बोला फिर से इंस्टॉल कर दूंगा आज। अच्छा ठीक है, इंस्टॉल होने के बता देना, मुझे फोन कर लेना, मैं उसको चलेगा सर। परमानेंट बता दूंगा आपको कैसे करना है, ताकि बार बार फिर वो आपको सर्वर आईडी एंटर करने की जरूरत ना हो। वही, हाँ बार बार आ रहा था वो। मैं उसको बता देता, एक बार हो जाए तो मुझे बता देना, फोन कर देना। ओके सर, ओके सर। ठीक है guys, what else we can do now? Let me see. स्क्रीन शेयरिंग अपने आप रुक रहा है। ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर भी नहीं पढ़ सकते। ये भी नहीं पढ़ सकते। गुड, चलो क्या करें, रुक देते हैं। मैं देखता हूँ नीलेश सर से बात कर। यस सर। कुछ नहीं कर सकते हैं सर। आपका लास्ट डे क्या दिया है आपको सिलेबस का? कुछ 6th of April कुछ है ना? अप्रैल 6 of April। 6 of April, ठीक है, तो वी हैव एग्जैक्टली 1 month। ठीक है, हो जाएगा, नॉट एन इश्यू, हो जाएगा। देखो गाइज, ये जो बुक 1 है, बुक 1 को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सब कुछ नया होता है, टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, स्क्रीन्स नए होते हैं, सब कुछ। तो मैं बुक 1 थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। एक बार बुक 1 खत्म हो गया कि उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से स्पीड से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को कैच करने में, सब कुछ समझने में काफी इजी जाता है सब कुछ चीजें। या समवन इज सेइंग समथिंग। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं? देखो, हर यूनिट के एंड में ना लर्निंग असेसमेंट है। जैसे ये देखो, ये एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसके एंड में है ये वाला 295 पेज नंबर। ओके, इसके नीचे ना लर्निंग असेसमेंट होता है। लर्निंग असेसमेंट होता है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उसमें लिखा रहेगा कि आंसर करेक्ट टू, ओके, 2 आर करेक्ट आंसर, या 3 आउट ऑफ 3 1 इज करेक्ट आंसर, आउट ऑफ 5 2 इज करेक्ट आंसर, ऐसे लिखा होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप जैसे जैसे यूनिट हम लोग पढ़ते जाएंगे, आपको ये लर्निंग असेसमेंट कंप्लीट करते जाना है। बट आई विल सजेस्ट नाउ, बुक 1 फिनिश होने तक वेट करो। इसकी जो लैंग्वेज है ना लर्निंग असेसमेंट की, ये काफ़ी बच्चों ने बोला है कि सर ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि बुक 1 फिनिश होने तक रुक जाओ। बुक 1 फिनिश होने के बाद ये लर्निंग असेसमेंट आप लोग कर सकते हैं। अभी करेंगे ना तो अभी भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा ओवर द हेड हो जाती है कभी कभी। ट्राई कीजिए, यही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। और एंड ऑफ द सिलेबस मैं आपको 400 क्वेश्चंस दूंगा। उन 400 क्वेश्चंस में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 100% उसमें से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो लर्निंग असेसमेंट अगर आपको करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, आप लोग कर सकते हैं। नहीं किया तो छोड़ दो। मैं आपको एंड ऑफ द सिलेबस कुछ 400-500 क्वेश्चंस है मेरे पास, वो मैं आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा। उसमें से ही आते हैं, कोई 90% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, तो वो भी हो जाएगा। ओके, नॉट एन इशू। तब तक अगर लर्निंग असेसमेंट करते रहना है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग करते रहिए। ओके, ठीक है गाइस, देन वी विल शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। मैं देखता हूँ सिस्टम को रीसेट करने को, बोलता हूँ नीलेश सर को। रीसेट करने में 2-3 घंटे लगते हैं, तो 2-3 मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि सिस्टम रीसेट हो रहा है। तो 2-3 घंटे तक लॉगिन मत करना, लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे आप लोग, उसको टाइम लगता है रीसेट होने के लिए। ओके, ठीक है गाइस, चलो कनेक्ट, आई विल इन्फॉर्म यू। और प्रसाद, तू मुझे बता देना क्या होता है। यस सर, यस। बाय गाइस, हैव गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।